السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ صلوات۔ شب عاشور میں میرے محترم معظم معزز عزادار شرکت فرما کر اپنے آپ کو کربلائی بنانے والوں، پروردگار عالم ہم تمام کو مولا حسین کا کربلائی بنا دے۔ شب عاشور وہ رات ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ کیا بات ہے! شب عاشور قسمت بدلنے والی رات ہے۔ آپ عزادار
اس رات سے جو چاہیں گے حاصل کر لیں گے. اور اب جب کہہ رہا ہوں جو چاہیں گے، مراد میری فقط دنیا نہیں ہے. اب جو چاہت ہے وہ چاہت عرفان ہے، وہ چاہت معرفت ہے، وہ چاہت قرب خدا ہے. جو قرب خدا قرب مولا حسین سے نصیب ہوگا. یہ آج ہم نے مانگنا ہے. آپ نے گزشتہ مجالس میں کچھ معارف عزاداری اور عزادار کے متعلق سماعت فرمائے ہیں اس منبر سے. آج ایک جملہ ہدیہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. شک نہیں ہے کہ عزاداری دین کا ستون ہے. جیسے دین کا سائباں ہے ویسے ستون ہے. دین اگر قائم ہے تو عزاداری پر، اگر دین کو چھاؤں نصیب ہوتی ہے. بڑا لطیف جملہ میں نے کہا. میں نے لفظ سایہ نہیں کہا جان کر، ہاں محسوس ہونے والا جملہ کہا. گرمیوں کا مہینہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے. ہر بندہ کیا ہے؟ چھاؤں کی تلاش میں ہوتا ہے. اگر ظلم و بربریت کی دھوپ میں سے بچ کر اسلام کہیں چھاؤں کو ڈھونڈنا چاہے تو عزاداری ملتی ہے. سارے ساتھ رہو، پیچھے نہ رہو. اور جلدی میں تاکہ آپ تک معارف کو زیادہ سے زیادہ منتقل کر سکوں. تو عزاداری جیسے عظیم صائبہ ہے ویسے بڑا محکم ستون دین ہے. اور عزاداری، توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دین کا ستون عزاداری، اور عزاداری کی مرکزیت کا نام ہے دنوں میں، راتوں میں شب عاشور، دنوں میں روز عاشور. بس آپ بڑے مرکزی نقطہ الہیہ پر تشریف لائے ہیں. شب عاشور راتوں میں دیکھا جائے تو یہ مرکز ہے عزاداری کا، اور روز عاشور جو کل آ رہا ہے اگر دنوں میں دیکھا جائے تو وہ مرکز ہے. اور جب بندہ مرکز تک پہنچ جائے پھر جتنا زیادہ لے گا پورا سال اسی کی بنیاد پر عزاداری کا سانس لیتا رہے گا. کسی نے تو احساس کیا ہوگا میرا جملہ یہ تھا عزاداری والی سانس. باقی سانس تو ہم لیتے ہی رہتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. یعنی آج کی رات سے، کل کے دن سے ہم نے کچھ اس طرح اس سے لینا ہے، پھر پورا سال عزاداری کی سانس نکلتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور بات میری پہنچ رہی ہے بڑے محترم سامعین تک، بڑے عظیم پڑھے لکھے عزاداروں تک. اور راستہ کیا ہے لینے کا راستہ ایک ہی ہے اور کچھ نہیں. جتنا، مجھے دیکھنا، جتنا معرفت عزاداری کے ساتھ اور جتنا اخلاص کے ساتھ عزاداری انجام دیں گے اتنا حسین بڑا عزادار بنا دیں گے. راستہ یہی ہے. آج کی رات کا سب سے بڑا عمل عزاداری، کل کے دن کا سب سے بڑا عمل عزاداری. توجہ کیجئے گا، میں آپ کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں سب کی سر فہرست عزاداری، سب کی سری فہرست آنسو، سب کی سر فہرست ماتم. بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک نا؟ تو پھر یہ پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہی عزاداری ہے آنسو کے سائے میں کوئی عبادت قبول ہو جائے.
कोई अमल कबूल हो जाएगा। बस आंसुओं की बहार है आज की रात भी और कल का दिन भी। यहाँ से इतना लें कि मजलूम की मजलूमा माँ इतनी दुआएं दे हमें, जो उसने वादा फरमाया है वो हम अज़ादारों के साथ दुनिया में भी अंजाम दे दें, आखिरत में भी अंजाम दे दें। इस चीज़ को हासिल करने के लिए तवज्जो से सलावात पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सलावात में सब शरीक हों। शुहदाए करबला के लिए बुलंद सलावात पढ़ें। मुहर्रम आज़ादारी का चांद है, बल्कि जुमला आगे बढ़ा कर कह रहा हूँ, मुहर्रम आज़ादारी का सूरज है। मुहर्रम 12 महीनों में मुहर्रम का चांद होता है, आज़ादारी का सूरज होता है। ये सूरज है। और सूरज का काम क्या होता है? बड़ी तवज्जो करना। सूरज का काम क्या होता है? वो अपनी किरणें ज़मीन पे डालता है। ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजाने कभी गंदम बन के बाहर आते हैं, कभी जौ बन के बाहर आते हैं। जो ज़मीन के जिगर में होता है ये अपनी किरणों से निकाल लाता है। मुहर्रम जब सूरज बन के मोमिन के दिलों पर आता है, जितनी मारिफत होती है उतना अजीम बना देता है। कोई जौन के कदमों में पहुंच जाता है, कोई हुर के कदमों में पहुंच जाता है, कोई हबीब इब्ने मदाहिर के कदमों में पहुंच जाता है। शुहदाए करबला वाले हर एक को देखते हैं, जिसके दिल में जैसा जौहर है वही शजर बना देते हैं। कोई महरूम न रहे। हैदरी मुहर्रम ये ऐसा सूरज है, ऐसा सूरज है। और फिर दिल में देखिएगा मारिफत क्या है। नाराज भी ना होना, एक बात अब हदिया करने लगा हूं। अच्छा, जो चीज उसके अंदर हो वही निकालता है। अगर अंदर गुलाब के फूल का बीज हो तो गुलाब का फूल निकलेगा। भाई तवज्जो कीजिएगा। और अगर कोई गंदी शय हो तो वही गंदी बदबू वाला पौधा ही बाहर आएगा। मुहर्रम भी आकर ये सूरज बनकर मुसलमानों और इंसानों की पाक सरजमीन से जो शय है निकाल कर बताता है ताहिर और पाक कौन है, नजस और पलीद कौन है। सब अच्छा, अब लफ्ज बदल देता हूं ताकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं, लफ्ज बदल कर कहता हूं। जब आफ़ताब मुहर्रम दिलों की सरजमीन पे पड़ता है, वाज़े हो जाते हैं हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। हुसैनी हो, हुसैनी हो, जिस मसलक से ताल्लुक रखता हो हुसैनियों में आ जाता है। यजीदी हो, अगर यहां भी बैठा हो तो जल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मारिफत मुहर्रम भी आप तक पहुंच रहा है। यहाँ पर एक मैं सवाल करता हूँ और उसी का जवाब, और आज की ख़ास मजलिस है यही, इसी सवाल जवाब के अंदाज में बात ख़त्म हो जाएगी और आप तक मारिफत के बहुत नूरानी तजल्लियात पहुँच जाएंगी।
سوال یہ ہے، محرم آتا ہے ہر سال، محرم ہمیں کیا دینے آتا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اسی کا جواب ہے، میں ذرا توجہ کیجئے گا۔ محرم ہمیں کیا دینے آتا ہے، ہمیں محرم سے لینا کیا چاہیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی بات ہے نا، یہ آپ کے اندر کا سوال ہے نا، ہر ایک ہر مومن کے اندر کا سوال ہے۔ جو بھی محرم مناتا ہے، کبھی ذہن میں آیا نہ ہو یا نہ آیا ہو، فطرت یہی بولتی ہے محرم ہمیں دینے کیا آتا ہے، محرم سے ہمیں لینا کیا چاہیے۔ اس کے محرم اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، قسم بخدا بہت بڑی رحمت کا مہینہ ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ محرم دو قسم کی رحمت دینے آتا ہے، اور ہم بھی دو قسم کی رحمت لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، آج کی مجلس بھی بڑی خاص ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے وہ چیزیں جو میں دل سے کچھ اپنائیت کی بنیاد پر اپنے عظیم عزاداروں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہاں تک میں پہنچ جاؤں اور آپ سے شیئر کر سکوں۔ یہاں سے بات ہو رہی ہے اور اس درمیان تک میں نے پہنچنا ہے کہ آپ سے شیئر کروں وہ باتیں۔ انتہائی توجہ فرمائیے گا۔ پس محرم دو قسم کی اپنی عطا دیتا ہے، اور ہم دو قسم کی عطا لیتے ہیں۔ ایک اس کی عطا اور رحمت وہ ہے جو عام ہے، اور دوسری وہ ہے جو خاص ہے۔ سنیے گا بھائی، علم اور معرفت کے ساتھ بات کو سنیے گا، فقاہت میں آپ کو ہدایہ کر رہا ہوں، انتہائی توجہ کیجیے گا۔ یہ دو قسم کی ہے، تو یہ رحمت عام اور عطا عام کیا ہے، رحمت خاص اور عطا خاص کیا ہے۔ رحمت عام وہ ہوتی ہے جو کسی کو دیکھ کر نہیں دی جاتی، اوئے ہوئے ہوئے، وہ کسی کو دیکھ کر نہیں دی جاتی، بلکہ محرم اپنی ذات کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، اپنی ذات کو دیکھ کر، سامنے والے کو نہیں دیکھتے، اور تمام پر مشترک نازل ہوتی ہے، تمام پر مشترک نازل ہوتی ہے۔ یہ عام ہے، بھئی توجہ کیجئے گا۔ اب میں اسی تھوڑا سا رکتا ہوں اسی عام کے اوپر، جو رحمت عام ہے، جو ہر ایک کے اوپر ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، محرم کی پہلی عطا یہ ہے، ہر کلمہ گو کے دل میں لا الہ الا اللہ کو زندہ کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہر انسان میں انسانیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو بھی انسان ہے محرم اسے انسانیت عطا کر رہا ہے۔ اب بولو یار، آپ تو پیچھے نہ رہو نا، یہ عام ہے، کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس کو کلمہ دل میں اس کے اجاگر کر کے، زندہ کر کے، اس کو احساس مسلمانیت عطا کرتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسجد میں جانے والے کو مسجد کی عظمت دل میں اجاگر کرتا ہے، نمازی کو نماز کا شعور دیتا ہے۔ بھی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی شریعت کو، شریعت کے پائبند کو، شریعت کے ماننے والے ہر مسلمان کو شریعت کا شعور عطا کرتا ہے۔ اب میں لفظ بدلتا ہوں۔ اس بچے کو مولا نور معرفت کے ساتھ بہت بڑا عزادار بنا ہے۔ بھائی انتہائی توجہ، محرم کیا کرتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ محرم، اس کی رحمت عام یہ ہے، پورا سال جو اسلام پر ظلم ہوتے ہیں، اسلام کے پیکر پر زخم لگتے ہیں، اور اسلام کو مٹانے کی اسلام دشمن لوگ کوششیں کرتے ہیں، محرم آ کر دشمن کے پروپیگنڈے کو ویران کر کے، محو کر کے اسلام اور دین کی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔
या मौला आपके नूर मार्फत में इधर किससे किससे रोका गया? नहीं 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 कोई किसी ने नहीं, किसी ने नहीं रोका आपको। आप तशरीफ़ फरमा है। हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह तशरीफ़ है, कोई मसले। ये तो मैं लाया हूँ खुद। नहीं ठीक है ठीक, तशरीफ़ है। क्या आपको आने दिया, आप माशाल्लाह बैठे हैं कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाए, किसी ने नहीं रोका, रोकता भी कोई नहीं है। हुसैन की मजलिस में कोई किसी को नहीं रोकता है, कोई किसी को नहीं रोकता। आप तशरीफ़ रखें। रोज़ाना आपको इज़्ज़त दी जाती है, किसी ने आपको रोका ही नहीं है। कौन है रोकने वाला? जहाँ आप रोज़ाना तो बैठते हैं, यहाँ मैं रोज़ाना इनको देखता हूँ। इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ, बात को पहुँचाना है। तो मजलिस से ये मुहर्रम, इसकी अताए आम ये है कि मुहर्रम का सूरज इस्लाम जिंदाबाद होने का नारा लगाता है। मैं अपने मिजाज का बंदा हूँ यार, मेरी बात को लिया करो। जब मुहर्रम इस्लाम जिंदाबाद होने का नारा लगाता है, तब हम तुमको तौफीक होती है कि हम भी इस्लाम जिंदाबाद कहें। अब मेरा साथ देना यार, मेरा साथ देना यार। मुहर्रम इस्लाम की जिंदगी का ऐलान करता है, लेकिन करता कैसे है? मुझे देखो, पूरी जिंदगी की तवज्जो जमा करो, मुझे देखो, जुमला कहने लगाओ। इस्लाम, मुहर्रम इस्लाम की जिंदगी का ऐलान तो करता है, लेकिन करता किस अंदाज में है? हुसैनियत जिंदाबाद कहकर, यजीदियत मुर्दाबाद कहकर इस्लाम को जिंदा कर देता। क्योंकि इस्लाम की जिंदगी हुसैनियत की जिंदगी से है और यजीदियत की मौत से है। या अली 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली। मौला आपको सलामत रखे, तशरीफ रखिएगा। इंतहाई तवज्जो, बड़ा लुत्फ था उस जुमले में। मैंने आपको कहा है मैं दिल की बातें आपसे शेयर करने लगा हूँ। मुहर्रम आकर इस्लाम की ज़िंदगी का ऐलान तो करता है, लेकिन मुसलमान देख तो सही करता किस अंदाज में है। पहले हुसैन जिंदाबाद कहता है, फिर यजीद मुर्दाबाद कहता है। इसी का नाम तो इस्लाम की ज़िंदगी है। तू यजीद कम से मोहब्बत करके इस्लाम का कैसा दावेदार है? कोई हुसैन को छोड़कर मुसलमान कहलवाने का हक कैसा रखता है? हैदरी, बात पहुंच रही है मेरे अजीम सामीन तक। आम अता ये है, मैं कुछ बातें कल की मजलिस में जो चौक पे होनी है 5 बजे इंशाअल्लाह तबारक व ताला, वहां पर इस आम अता पे बोलूंगा। आप इसी ज़हनियत के साथ तशरीफ़ लाना, लेकिन इससे ऊपर और बातें मैं वहाँ पर करूँगा। इजाज़त है मैं आगे बढ़ जाऊँ? ये इस्लाम की अता है, माफ़ कीजिएगा, मुहर्रम की अता है इस्लाम। यानी हर साल इस्लाम की ज़िंदगी का ऐलान होता है। ओए होए होए होए, इस्लाम को जान मिलती है। पूरे साल में इस्लाम के खिलाफ लगने वाले इस्लाम को तीर और निश्तर से, इस्लाम की जान से निकला हुआ खून मुहर्रम में फिर तुम आज़ादारों की बदौलत वापस आ जाता। तुम्हारी बदौलत आ जाता है। जो बंदा तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कायनात का बेइज्जत तरीन फर्द है, और जो तुम्हारी इज्जत करता है वही तो इज्जतदार है।
बुलंद कहो, आप भी बुलंद कहें आखिर तक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आम अताए मुहर्रम है। अच्छा, एक जुमला और है आम अता के बारे में, हदिया कर दूं? इससे ज़्यादा तवज्जो में लोगे? तैयार हो? ज़ौक़े समात ऊपर रहेगा। अच्छा, आम जो रहमत है ना, आपका नाम क्या है? आपका मुझे देखो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद अफजल। मेरे हुसैनी भाइयों, आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ। आम रहमत और अता की तारीफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह की दो सिफतें हैं जो बिस्मिल्लाह में आप पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान है, अर्रहीम है, तमाम जानते हैं। रहमान रहमत आम है, रहीम रहमत ख़ास है। मैं बोलूँगा इसके ऊपर। रहमत आम का माना क्या होता है? जो उसे मानता है उसे भी देता है, जो उसे नहीं मानता उसे भी देता है। नहीं गौर कर रहे? अल्लाह को जो अल्लाह मानता है वो भी तो अल्लाह की ज़मीन पे चल रहा है, और जो मेरे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता बदबख्त, वो भी तो मेरे अल्लाह की ज़मीन पे चल रहा है। जो अल्लाह को अल्लाह मानता है उसी के सूरज से लेता है, जो नहीं मानता वो भी इसी सूरज से शुआ लेता है। यानी ये ऑक्सीजन जो भी सांस है, जो अल्लाह को अल्लाह मानता है अल्लाह उसे भी देता है, जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता भौंकता है उसे भी अल्लाह देता है। हुसैन भी अल्लाह की रहमानियत का मजहर है। जो हुसैन को हुसैन मानता है उसे भी इस्लाम देता है, जो भौंकता है उसे भी देता। बैठिएगा शहजाद साहब, बैठिएगा। टाइम थोड़ा मैं आपको हदिया करता हूँ, आप अगली बात हदिया करें। अगली बात हदिया करता हूँ, उसके बाद तवज्जो चाहिए। अगली बात पे आप बोलें, अगली बात पे आप नारा लगाएं, इजाज़त दूंगा। एक बात करने दें, मैं मुकम्मल कर लूँ फिर नारा लगाएं। हाँ, मैं एक बात कर लूँ फिर तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। रहमत आम में और रहमत ख़ास में, जो उसे मानता है उसे भी देता है। मुझे देखिएगा, जो उसे नहीं मानता उसे भी देता है। हर एक का जिगर संभालना, दुआ भी देना। जो मानता है उसे भी देता है, जो नहीं मानता उसे भी देता है। हुसैन अल्लाह की रहमानियत का मजहर है। जो उसे मानता है उसे भी देता है, जो नहीं मानता उसे भी देता है। इन लोगों में भी फर्क हो जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कोई मान कर खाते हैं, नमक हलाली करते हैं, कोई खाकर भौंकते हैं, नमक हरामी करते हैं। अब खड़े होकर जो मौला आपको जिंदगी दे, मौला आपको जिंदगी दे। अब इसके नारे का जवाब दो। नारा लगवाएं, आप नारा लगवाएं। मौला आपकी तबीयत को ठीक कर देंगे। हाँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप नारा लगाएं, सुनते हैं। आप नारा लगाएं, नारा लगवाएं। जी जी, क्या बात। अब
आप नारा लगाएं, खुदा लिए नारा लगाएं, बस ठीक है। बिस्मिल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ हाँ, छोटे थे आने लगे जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मौला आपको नूर मार्फत आप फरमाएं, मौला आपको नूर। बस अब आपका वो जो कुछ भी था ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल खुश हैं। हाँ ठीक है, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, क्या बात है, क्या बात है। रहमत आम वो होती है जो सामने वाले को नहीं देखती, जो माने उसे भी देता है, जो न माने उसे भी देता है। फर्क इतना है, कोई मान कर खाता है तो नमक हलाल ही करता है, कोई खा कर भी भौंकता है, नमक हराम ही करता है। उसकी अदा में फर्क नहीं आता। ओए होए 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 होए। खैर लंबी हो जाएगी बात, बातें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मैं रोक रहा हूं आगे। ये रहमत आम है, चाहता हूं रहमत खास पे बोलूं। खुदा रहीम है और उनकी रहमत खास ये है, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो आखिरत पर हो, वो फकत मोमिनों के लिए होती है। जैसे कुरान है, कुरान भी ऐसा है, उसकी हिदायत आम है, एक हिदायत खास है। जब हिदायत आम हो, हुदल नास, पूरे लोगों के लिए आया है, तवज्जो नहीं फरमाया। और जब हिदायत खास हो जाए, हुदल मुत्तकीन, फकत मोमिन मुत्तकी की हिदायत करता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आजादारी रहमान और रहीमियत की तरह और कुरान की तरह मेरा हुसैन रहमान और रहीमियत का मजहर बनकर जो भी सामने आता है उस पर बारिश तो करता है, लेता वही है जो मोमिन होता। सुनिएगा, सुनिएगा, रहमत खास क्या है जो मुख्तस से मोमिन के साथ उसको नसीब होती है। आओ, वो जो रहमत आम है ना, गोया के ना भी मांगो ना मिल जाती है, लेकिन रहमत खास मांगने से मिलती है। शाबाश शाबाश भाई, तैयार हो जाओ। रहमत आम जो है, रहमत आम मेरे पास ना रखो, इसको तो तकसीम करना है आपको, तवज्जो करें। रहमत आम जो है, मुझे देखिएगा, रहमत आम जो है वो आ रही होती है, फकत अपने दिल से पर्दा हटाना होता है। रहमत खास के लिए कुछ मांगना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, कुछ सजदे करने पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोई रोना पड़ता है, कोई गिड़गिड़ाना पड़ता है, कोई तौबा करनी पड़ती है, कोई माफ़ी मांगनी पड़ती है। क्या बात है, रहमत खास ये है। आओ, अब मैं अपने अंदाज में आज की रात का तारुफ करवाता हूँ। इंतहाई तवज्जो। मुहर्रम हमें क्या देने आता है, रहमत आम मैंने बता दी। हमें क्या लेना चाहिए वो आम बता दिया, अब खास बताने लगा हूँ। ये मुहर्रम हमें देने क्या आता है, हमें लेना क्या चाहिए।
एक लफ्ज़ में बताता हूँ, अल्लाह करे आखिर तक हर बंदे का हाथ उठ जाए। इंतहाई तवज्जो। मुहर्रम हमें क्या देने आता है, हमें मुहर्रम से लेना क्या चाहिए। आज़ादारों, मवालियों, जो कुछ मुझे समझ आया है, मुहर्रम हमें हुर बनाने आता। क्या बात है तुम्हारे हाथों की। जिनके हाथ उठे हैं वो मौला के हुर बन जाए, वो हुसैन के हुर बन जाए, वो हुर के साथ मैं शूर हूँ। हुसैन जनाबे हजरत हुर उनका इस्तेकबाल करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये रात हुर बनने की रात है। क्या बात है, शब आशूर हुर बनने की रात है। आओ, आप जिसको रोना है वो रोए। यहाँ से मजलिस अजीब है, रोएंगे भी, रोने की बातें भी हैं, लेकिन मारिफत वाला रोना होगा। हाँ हाँ, यहाँ से आगे मजलिस जहाँ तक मैं पढ़ूंगा वो इस तरह की मजलिस है। बड़ी ख़ास मजलिस में शुरू करने लगा हूँ और पूरी ज़िंदगी आप मुझे हकीर को दुआएं दोगे। ये तब समझ आएगा कि हमें हुर बनाने आती है शहजाद साहब, जब पहचानेंगे कि हुर कौन था। हुर का पहला तारुफ, हुर वो है जिसने करबला के रास्ते में मंजिल शिराफ पर, मेरा जुमला सुनना, मौला हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। ऐसा है ना, ठीक कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरे जुमले पे हर करीम दिल आंसू बहाए। इसने मंजिल शिराफ पर ज़िंदगी में पहली मर्तबा मौला हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। अली की बेटी हज़रत आलिया के ऊँट की महार में हाथ डाला। ओए होए 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 होए। तीसरे जुमले पे हर मातमी का आंसू आएगा। मौला हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। बीबी ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा के ऊँट की महार में हाथ डाला। अब्बास देख रहे थे। हाय हाय हाय, क्या बात है मातमियों की, क्या बात है तुम रोने वालों की। गाजी के सामने इतनी बड़ी जिसारत की, यह है हुर। और फिर करबला, और फिर करबला में ले आने वाला। जुमला यहाँ पर इमाम हुसैन ने एक कहा था, इसको फरमाया था, सकलत का उम्मुख, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे हुर, तूने बड़ी जिसारत की है। इसने उस वक्त जवाब नहीं दिया था और सर झुका के कहा था, अली के बेटे, मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता। इज्जत कर गया था। देखो देखो, जिन्होंने बतूल की इज्जत की कैसा हुर बना, नाम की इज्जत की, और जिन्होंने बतूल का दरबार में भी आना इज्जत नहीं किया। क्या बात है तुम्हारे आंसू। मौला इनके आंसू के बदले इनको हुर बना दे। इन अदादारों के सदके में मुझ हकीर को भी हुर बना दे। ये गुजरा, ये हुर है, ये हुर है। करबला ले आने वाला हुर है, आ गया। आज की रात आई। मैं आप सुनिएगा, हुर हुर कौन? वो हुर और आज की रात। आज की रात हुर ने एक मर्तबा सोचा, हुर ने अपने आप को कहा, हुर तूने क्या किया? पशेमान हुआ इतना जिसकी हद नहीं। पानी होने लगा, पशेमान हुआ। कहा अब तौबा करो। थोड़े से मिनट बल्कि सेकंड लेता हूं, तवज्जो कीजिएगा। इसका ज़हन, दिमाग हुर को कहता था, हुर तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। तू बहुत बड़ा गुस्ताख है, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती है। तेरी माफ़ी हो सकती है, तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, अली की बेटियों को जंगल में ले आया। यह इसका दिमाग कह रहा था। अल्लाह करे जुमला पहुंचा सकूं मैं आप तक। इसका दिमाग कह रहा था, हुर तेरी माफ़ी नहीं होती, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इसी में काफ़ी देर ज़हन की सुन सुन के बैठा रहा। एक मर्तबा हुर का दिल बोला, दिल से आवाज़ निकली, हुर
तू जितना बड़ा गुनाहगार हो, हुसैन बहुत बड़े लजपाल है। बस यही दिल की आवाज थी जिसने जहन की बात को ठुकराया, दिल की मान कर हुर चल पड़ा। चलता हुआ बारगाह हुसैन में आने लगा। पता नहीं शायद रात का यही वक्त हो। मेरे मौला अपने असहाब में बैठे थे। एक मर्तबा मेरे मौला खड़े हुए। असहाब में जब मौला खड़े हुए, इन्होंने कहा मौला खड़े होने की वजह क्या है, हमला करना है? मौला फरमाते हमला नहीं, मैंने मेहमान का इंतजार करना है। ओ मेरा मेहमान आ रहा है। और रोने वालों इधर से हुराया। इसने अपने आप को गिराया। ऊपर नहीं देखता था, नीचे देखता था। मौला के कदमों पे गिराया। हुसैन ने इसके माथे पे ऊपर नीचे से हाथ रखा, फिर सीने पे बुलंद करना शुरू किया, बुलंद करना शुरू किया, बुलंद करना शुरू किया। इतना बुलंद किया, माथा चूम के फरमाते हैं मैं तो कब से इंतजार में था। ओ मुझे अम्मा कह कर गई है, ओ इसने हमारा हया किया, ये आ जाएगा। अजरकुम अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हुर बनने की रात है, आज हुर बनने की रात है। इसी मजलिस में, मजलिस की खुसूसियत ही यही है, जितने लोग भी बैठे हो ना सैकड़ों की तादाद में, फिर भी एक दूसरे के लिए माने नहीं है, कोई माने नहीं। दिल में अभी अभी अपने आप को करबला ले जाएं। कैसे ले जाएंगे? दिल में, बेशक जबान से न कहो, दिल में कहो मौला हमने बड़ी गफलतें की। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ मोहम्मद ही बड़ी गफलतें की पूरा साल, बड़ी कोताहियाँ की, बड़ी खताएं की, बड़े गुनाह किए तूने। बंदा इसी अंदाज में अपने आप को कदम हुसैन पर ले जाए, बोझा लेकर एक जुमला कहते हैं, मैं आपकी तर्जमानी करता हूँ, आपकी तरफ से बारगाह मौला में अर्ज करता हूँ मौला हम जितने खताकार हूँ गुस्ताख नहीं, ओ तेरे आज़ादार है, हमें हुर बना दे। ये इस मजलिस का तकाजा था, मैंने कहा, और इंशाअल्लाह इसी मजलिस में कोई पहुंच गए होंगे। और आज की शब का अजीम अमल यही है, मातम करना, आज़ादारी करना, रोते रहना आज शब। लेकिन थोड़ी सी देर तन्हाई में जाना, किसी खलवत में जाना, और कुछ न मिले अपने घर की छत पे चले जाना। लेकिन मस्जिद और इमाम बारगाह चाहे लोग बैठे भी हों, अपने में तन्हाई कर लेना और करबला की तरफ रुख करके अपने जितनी खताएं हैं कहना शुरू कर दो, यार वो हुर गुस्ताख था। गुस्ताख का दर्जा बड़ा होता है, यानी वो बुरा ज़्यादा होता है। गुनाहगार खताकार होता है, गुस्ताख नहीं होता। वो गुस्ताख को हुर बनाने वाले हैं, ये तो आज़ादार है। अगर करबला के रुख करके आप अपनी खलवत में आज के शब, कुछ खलवत ज़रूर करना, कुछ खलवत ज़रूर करना। जो रोड पर मोमिनीन अज़ादार चल रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जहाँ पर भी मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आवाज़ सुन रहे हो रुक जाओ, खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। थोड़ी सी ये मजलिस तवज्जो से समाअत फरमाएं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज की रात बताना चाहता हूँ, हुर बनने वाली रात है। और अगर हम हुर बन गए ना, कसम बखुदा, ज़ाहिरन वहाँ पर भी बतूल का रुमाल मिला था ना जनाबे हुर को। कसम बखुदा क़यामत वाले दिन या मेहदी के ज़हूर में तुम्हें भी वही रुमाल मिलेगा। आज हमने हुर बनना है, आज की रात में हमने हुर बनना है। बस ये आज की रात का यही बात थी जो अब तक ये रहमत ख़ास है, ये मुहर्रम की रहमत ख़ास है, ये झुकने से मिलती है, ये अपने आप को आजिज़ करने से मिलती है। अज़ादार तो होता ही मुतवाज़े है,
मातमी होता ही झुका हुआ है। मैं आपकी तरफ से एक तर्जमानी करते हुए मैं गुनहगार होकर आपके पाँव की खाक हूँ, फ़कत मिंबर पर बैठे होने के नाते से हदिया कर रहा हूँ, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। आप मुझसे बेहतर हैं, जितने अज़ादार बैठे हो मुझसे बेहतर हो। आपका एक पाँव की कदमों की खाक अज़ादार होकर एक जुमला कहना चाहता हूँ, मौला तुझे वास्ता अपनी अम्मा ज़हरा का। मैंने वास्ता बहुत बड़ा दे दिया है, अब रद्द नहीं होगा यार, सारे ख्याल छोड़ो, ये वास्ता रद्द नहीं होता। तुझे वास्ता अपनी अम्मा बतूल का। जितने इस बारगाह में आए हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो इस कैमरे के ज़रिए से सुन रहे हैं, सबको आज की रात होर बना दे, रहमत ख़ास अता फरमा दे, सबको अपना बना दे, सबको करबलाई बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इस वक्त में आप तक रहमत ख़ास बस ये हमने लेनी है, ये लेने की कोशिश आज की रात हमने करते रहना है। बात मेरी ख़त्म हो गई। आओ, रोने के लिए आए हो, मैं रोने का समा मुहैया करता हूँ आपके लिए। अब भी आप रो चुके, ये भी इरफानी रोना था, अब भी जो पढ़ूँगा वो भी मारिफत वाला रोना है। आज की रात के मसाइब पढ़ता हूँ, सारे जानते हो, बस समझ लें जो आपका ज़हन है कि मसाइब शुरू हूँ तो हम रोएं। कुछ बंदे इस इंतज़ार में होते हैं ना, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ। आज की रात सब जानते हो, आज की रात को मेरा बेटा इमाम हुसैन ने कितने हिस्सों पे तकसीम किया? 3 हिस्सों पे। शाबाश। ये इन बच्चों को देखकर मुझे अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि यही हमारा मुस्तकबल है। ये बच्चे अज़ादारों अपने बेटों को लाया करो, ये हमारा मुस्तकबल है। हम गुजार चुके, कल इन्होंने हम आपका वारिस बनना है, इन्होंने अलाम उठाना है, इन्होंने या हुसैन, इन्होंने अज़ादारी करनी है। ये शजर मारिफत इनमें काश्त हो जाए। बेटे क्या हुआ? मौला हुसैन ने 3 हिस्सों में रात को तकसीम किया। एक हिस्सा असहाब में, दूसरा हिस्सा ख़याम में, तीसरा हिस्सा इबादत में। बस मैं तीनों हिस्से सुनाता हूँ, मेरे ख्याल में पत्थर भी पानी हो जाएगा जो मक्तल में है, और मेरा तजर्बा है अभी तक का। इंशाअल्लाह हर बंदा रो लेगा, दामन उसका पुर हो जाएगा। पहला हिस्सा किस में? असहाब में। असहाब में आए ना मेरे मौला ने एक खुतबा दिया, और ये खुतबा चराग बुझाने के बाद दिया। पहले आए, इरशाद फरमाया, देखो जो भी कल जिंदा रहेगा शहीद हो जाएगा। ये मौला का जुमला है, सुनिएगा। जो भी कल जिंदा रहेगा वो शहीद हो जाएगा, जो मस्तूर करबला में होगी वो कैदन बन जाएगा। ये मौला ने पहले कहा, जो जिंदा रहेगा वो कत्ल हो जाएगा, जो मस्तूर होगी वो कैदन बन जाएगी। फरमाते हैं, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, रात के अंधेरे से चले जाओ, अपनी मस्तूरात का भी हाथ पकड़ के ले जाओ। मैं कैसे कहूँ, मौला की 4 साला बेटी सकीना कहती है, मैंने एक मर्तबा देखा, अशरतन अशरा इशरीन इशरीन, 10-10 होकर लोग जाने लगे, 20-20 होकर बदबख्त जाने लगे। मुकद्दर वाले, ये बीबी का जुमला है, ये 72 का फिगर हुसैन की बेटी ने दिया। ये आपको आज हदिया कर दूं। हाँ, 72 का फिगर बीबी ने दिया है। बीबी कहती है 80 से थोड़े, 70 से ज़्यादा लोग बच गए। बड़ा रोएंगे अगर मेरे साथ आपने साथ दिया तो। ये बीबी का, आज मैं आते हुए मक्तल की किताब पढ़ रहा था, इक्सिरुल इबादत, उन्होंने ये लिखा है। बीबी कहती है इतने लोग बच गए, और रो रही थी बीबी। जुमला सुनिएगा, रो रही थी बीबी और यही कह रही थी, अल्लाह मेरे बाबा को अकेला छोड़ दे जा रहे हैं। मेरा बाबा तन्हा होता जा रहा है। मेरा बाबा तन्हा होता जा रहा। ये हुआ। जब बाकी वो खालिस बच्चे ना, खालिस, उनके लिए मेरे मौला ने 2 जुमले कहे। पहला जुमला फरमाया, हमद है उस परवरदिगार की, तवज्जो करना, हमद है उस परवरदिगार की कि जिसने मुझे बावफा तरीन सहाबी दिए। क्या बात है, क्या बात है, बात है। बावफा तरीन और खालिस तरीन सहाबी दिए।
आज तुम्हें समझ आई हम क्यों हुसैनी कहलवाते हैं। हुसैनी अदादार होता ही वही है जो बावफा हो, जो बावफा हो। एक फर्क मैं सुनाया करता हूं असहाब हुसैन में, असहाब हुसैन में और रसूल और अली के असहाब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रसूल और अली के साथ आने वाले सहाबियों को जंग में माले गनीमत की उम्मीद होती थी। हुसैन के साथ आने वालों को उम्मीद नहीं, यकीन था जो कुछ लेकर जा रहे हैं वापस नहीं आएगा, जो कुछ लेकर जा रहे हैं वापस नहीं आएगा। वो दुनिया की उम्मीद रख के जाते थे, ये दुनिया को ठोकर मार के जा रहे थे। दूसरा फर्क सुनो, हर बंदा रोएगा। नबियों रसूल के साथ आने वाले कभी 3 दिन के प्यासे नहीं लड़े थे। हुसैन के साथ आने वाले 3 दिन के प्यासे हैं। तीसरे जुमले पर तो हर बंदा का मातम होगा ना। नबी व अली के साथ आने वाले सहाबी कभी पर्दादार साथ नहीं लाए थे। हुसैन के साथ अली और बतूल की बड़ी इज्जत वाली बीवियां थी, जो दिन के सवेरे में कभी बाहर नहीं निकली थी, जो नाना की मदार पर रात के अंधेरे में जाती थी। अच्छा अब सुनो, अब मैं इन 72 की बात कर रहा हूँ। ये 3 फर्क जहन में रखना। तारीख़ इस्लाम बता रहा हूँ, बच्चों ले जाओ। इसके बावजूद चौथा फर्क ये है, मैदान में भागने वालों को रसूल फरमाते थे आओ, वो मुड़कर नहीं देखते थे। आज की रात हुसैन चिराग बुझाकर फरमाते हैं जाओ, हाथ जोड़ के कहते हैं तुझे छोड़ के कहा जा। ये हैं हुसैनी। हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं जो कभी नहीं छोड़ने वाले। हम भागने वाले नहीं, छोड़ने वाले भी नहीं, हम रहने वाले हैं कदमों। उस 72 के साथ हमारी मोहब्बत का सबब ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला जुमला मेरे मौला ने कहा। और दूसरा जुमला जब सच्चे पहुंच गए ना, फरमाते हैं आओ इरफ़ऊ रुऊसकुम वन्ज़िरू मनाज़िलकुम, फरमाते हैं अपने सर बुलंद करो। पर्दे हुसैन ने हटाकर फरमाया जन्नत में अपने मकामात देखो। मैं जहाँ पर कहा करता हूँ शब आशूर शब शहूद है, ज़मीन पर बैठकर नूर को देखने वाली रात, टीले पे बैठकर जन्नत को देखने वाली रात, खाक पे बैठकर नूर बनने वाली रात। और भाई देखो करबलाई ऐसे होते हैं। मेरे मौला ने फरमाया अपनी मंजिल अपने मकामात को जन्नत में देखो। लिखा हुआ था मसलन हाजा मंजिल हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये मंजिल औस इब्ने गुलाम, ये ज़ुहैर इब्ने कैन। असहाब के भी नाम लिखे हुए थे, हाशमियों के भी नाम लिखे हुए थे। बाद मक्तल वालों ने ये जुमला लिखा, तुम्हारे रोने के लिए रिवायत पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ते आए तमाम असहाब और तमाम शुहदा करबला के, जिन्होंने दिन में शहीद होना था, अपने अपने मकाम देख रहे थे। 13 साला हज़रत कासिम भी देख रहा था। एक मर्तबा निगाह पड़ी कि ये कासिम की मंजिल है, ये हज़रत अली अकबर की मंजिल है, ये हज़रत अब्बास की मंजिल है। ऐसे देखते आए ना, बीच में देखा लिखा हुआ था मंजिलो अली असगर, ये अली असगर का घर है। कसम बखुदा 13 साल के कासिम ने ये देखा, यार मातम नहीं आ रहा तुझे? अली असगर का घर देखा ना, यानी ये तो है शहीदों के घर। जब अली असगर का नाम लिखा हुआ देखा, कासिम रोने लगा, चचा के कदमों में लिपट गया और रोकर कहते हैं चचा मैं भी जंग करूंगा, अली अकबर भी जंग करेगा, हज़रत अब्बास भी जंग करेंगे, रो रो रो, अब्बास भी जंग करेंगे, असहाब भी जंग करेंगे। मुझे इतना बता भाई असगर तो अभी माँ की गोद में है, ये तो जंग करने के काबिल नहीं। गैरत हाशमी जोश में आई, रोकर कहता है चाचा इसका मतलब है ये शामी हमारे खेमे आ जाएगा।
सायरा जोश में आई, कासिम रोने लगे, हुसैन ने गले लगाया, माथा चूम के कहते हैं शाबाश मेरा गयूर बेटा। फरमाते हैं मेरी जिंदगी में वो नहीं आएंगे, मैं असगर को लेके जाऊंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज यार रात रोने की है, आज थकना नहीं है। थोड़ी सी थकावट होने लगे, दुआ मांगो, मौला ये थकावट दूर कर। बतूल के बेटे को रोने की रात है, कल किसको नसीब होगी। ये असहाब में, असहाब का हिस्सा मैंने आपको सुना दिया। बहुत सारी बातें छोड़कर इतना ही, यहाँ से उठे मेरे मौला हुसैन, अब एक एक खैमा में आने लगे। कौन सा जिगर कितना रोएगा मुझे पता नहीं है। बीबियाँ थी खैमों में, मेरे मौला एक एक खैमे में आने लगे। आओ सुनो जो मसाइब सुनना चाहते हैं। मैं मक्तल की नोक पलक समेट कर आपको हदिया कर रहा हूँ, सुनना इस जुमले को। 3 हिस्से थे, हर एक का अपना ख़ास हिस्सा। जब मौला असहाब में थे, बीबिया खैमों में, और जब मौला खैमों में आए, असहाब अपने अपने खैमों में। कोई एक दूसरे के साथ मुश्तरक नहीं था। लेकिन मक्तल में जो मुझे मिला है ना, हर कोई अपनी अपनी जगह पर था, लेकिन 4 साल की एक बच्ची है जो किसी हिस्से के साथ मुख्तस नहीं है, छोटी सी चादर की हुई है। बाबा की अबा का दामन सकीना ने पकड़ा हुआ है। हुसैन असहाब में जाते हैं, बच्ची साथ जाती है। औलाद वालों, हुसैन खैमों में जाते हैं, सकीना साथ जाती है। हुसैन इबादत करते हैं, बच्ची साथ जाती है। मौला रुक रुक के देख कर कहते हैं सकीना तुझे नींद नहीं आती? रोकर कह दिए बाबा तू सोएगा तो मुझे नींद आएगी। ओ बाबा मैं तो तेरे सीने पे छोड़ी हूँ, मातम करो सारे, कहो हाय सकीना, ओ तेरी आखिरी रात है आज की रात, तुझे हुसैन का सीना मिलाना है। अरे कल हुसैन का सीना नहीं होगा। ये बच्ची साथ साथ है। मैंने कहा ना असहाब में आए, चादर के नीचे छोटे से हाथ बुलंद करके कहती है अल्लाह मेरे बाबा को ये अकेला ना छोड़े। मेरा बाबा का शहीद हो गया, मेरी फूफियों की चादर का दावेर कोई नहीं होगा। ये बच्ची साथ है भाई, यही ज़हन में रखना, ये बच्ची साथ है। जिस खैमे में मौला हुसैन जाते हैं ना, ये बच्ची साथ जाती है। बस एक खैमे के दरवाजे पर हुसैन पहुँचे, यही जुमला सुन लीजिएगा। एक खैमे के दरवाजे पर हुसैन पहुँचे, आप समझ जाएंगे किसका खैमा है। एक बीबी है जिसने 13 साल यतीम को सामने बिठाया हुआ है, रो रो कर यही कह रही है कासिम मैं इस ख़ानदान से नहीं हूँ और साथ में बेवा हूँ। आज हर माँ अपनी कुर्बानी दे रही है। रो कर कहती है कासिम कर माँ को सुरखरू करना। ज़बान हाल है मैं सुनाने लगा हूँ। जब माँ ने कहा ना कासिम कर माँ को सुरखरू करना, अम्मा के कदम चूम के कहता है अम्मा ऐसा सुरखरू करूँगा क़यामत तक लोग याद करेंगे। अम्मा हर एक की लाश आएगी, मेरे टुकड़े आएंगे। अम्मा मेरा लाश असल मातम मातम मातम। सारे कहो हाय यतीम, सारे कहो हाय कासिम। जिन माऊ बहनों ने अपने बेटियों के बेटों के शादियों की मन्नतें मांग रखी है, वो तुम्हारे जवान सलामत रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे। मौला हुसैन बड़े रोए, शाबाश देकर आगे चले, शाबाश दी। ये करबला की माएँ हैं, जिगर देखो करबला की माओं के। ये कहकर आगे बढ़े।
बस कसम बखुदा एक खैमे में हुसैन गए, फिर रोते रोते खड़े नहीं रहे, बैठ गए। ये वो खैमा था जो बीबी रुबाब का था। झूले में अली असगर था, सामने बेटी थी जो कभी बाबा के साथ कभी अंदर जाती थी। हर रो रो कर कहे यही रही थी, असगर तू न तीर उठा सकता है, न तलवार उठा सकता है, न नेजा उठा सकता है। जुमला सुनिएगा, असगर तू तीर नहीं उठा सकता, तुझे कैसे मैदान भेजूंगी? मैं ज़बान हाल पे रहा हूँ, बेज़बानी में अर्ज करता है, अम्मा तीर उठा नहीं सकता, तीर खा तो सकता हो। तू अब्बा के हाथों पे भेजना, अब बाबा के हाथों पे तीर खाऊंगा, कहूँगा दोगो मैं रुबाब की मेहनत हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम नहीं सिवाय गम अहले बैत के। ख़त्म करूँ, काफिर हो चुके आप। बिलाखिर मौला हुसैन उस खैमे में आए जो अपनी बहन का खास खैमा था। मेरा दिल चाहता है बस मैं रो। मौला जब इस खैमे में आए ना, ऐसे बीबी आलिया ने उठकर फौरन एक चादर बिछाई, चादर बिछा के कहती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज की रात मेरी चादर है, आ मेरी चादर में बैठ जा, और कल ये चादर भी नहीं होगी। और यार कहो है ज़ैनब, अज़ादारों कहो है आलिया। रोता हुआ हुसैन बहन की चादर पे बैठ गए। बड़ी मक्तल मैंने पढ़ी है, कुछ 100 के लगभग किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन सबसे जो निकलता है वो यही है। अंदाज ये था, ऐसे हुसैन मौला के सामने बहन बैठी, हुसैन के बहन के सामने भाई बैठा, बस आंखें हुसैन के चेहरे पे लगी हुई है और कहती नहीं है और आंसू बह रहे हैं। बहन को रोता देखकर हुसैन रोने लगे, रो कर कहती है मुझे देखने दे, कल ये चेहरा जख्मी हो जाएगा, कल ये चेहरा मुझे नहीं दिखेगा, कल वैसे नहीं देखूं। आओ मकतल सुनाओ। मौला ने जब काफ़ी देर रुके ना, बहन, मौला ने कहा बहन कुछ नसीहतें वसीयतें मौला ने की। जब थोड़ी सी थमी ना, रो कर कंट्रोल करके कहती है ज़रा मुझे मेरे करीब आना। हुसैन फरमाते हैं क्यों यार मातम करना। हुसैन फरमाते हैं क्यों बहन? कहा आखिरी रात अम्मा ने मुझे वसीयत की थी, जब करबला में हुसैन आखिरी रात आए उसकी गर्दन में मेरे बोसे देना माता। बीबी ने हुसैन को बोसा दिया और रोकर कहती है हुसैन अम्मा ज़हरा का बोसा, ओ ये माँ ज़हरा का बोसा। रोने वालों बीबी ने चूमा, हुसैन रोए, करीब आकर कहते अच्छा अच्छा फिर मुझे भी बाबा की वसीयत। कहते हैं अब खैमे में चादर उतार, ओ मैं बाबा अली का बोसा दूं। बोसा दे के कहते हैं ये अली का बोसा, कल यहाँ नेज़े लगेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यहाँ से हुसैन उठे, आखिरी मरहला, बहुत रोए। ये मेरी बातें याद करके आज की रात रोते रहना, कल के दिन के लिए भी रोते रहना। यार ये आज की रात कल का दिन नसीब होगा तो साल के बाद, कल का पता नहीं है। ऐसे गुजारें कि होर बन जाए। इसी तरह रोते रहो, मोमिन मोमिन को मिले,
आज की रात और कर का अमल यही है, मोमिन मोमिन को मिलकर कहे कि मैं तुझे पुरसा देता हूँ हुसैन का। अगला जुमला सुनो, रिवायत के जुमले हैं, मैं पुरसा देता हूँ हुसैन का, अल्लाह हम तमाम को हज़रत मेहदी के साथ इंतकाम लेने वाला बना दे। जितना जो आज़ादार होगा वही मेरे मौला के साथ दुश्मनों से इंतकाम लेगा। यही कहते रहना और अपने आप को हुर बना लोगे। आखिरी हिस्सा, बस इसी में मजलिस को ख़त्म करता हूँ। आखिरी हिस्सा कौन सा था? इबादत का। सुना ना आपने मुझसे, हर हिस्से में हर एक का अपना अपना हिस्सा, लेकिन हुसैन की 4 साल बच्ची का मुश्तरक हिस्सा था। असहाब में भी पीछे बैठी रही, खैमों में भी साथ साथ थी, कभी साथ चलती थी, कभी क्या है, अब सुनना यही जुमला, कभी दामन छोड़कर ना अपने खैमे में जाती थी, थोड़ी सी देर के बाद वापस आती थी। मौला ने उठाकर चूम कर फरमाते हैं, मेरे साथ है, मुझसे प्यार है, ये खैमे में क्या करने जाती हो? रो कर कहती है, बाबा ना तेरे बगैर गुजरती है ना असगर के बगैर गुजरती है। मेरा असगर है झूले में सोया हुआ है, आंखें यूं लगी हुई है, मुंह खुला हुआ है, बेज़बानी में कहता है सकीना पानी, ओ बहन मुझे पानी पिला, ओ मैं उसको पानी नहीं पिला सकती, अम्मा का दूध खुश्क हो गया। ये हालत। रिवायत सुनो, हुसैन रेत करबला पर आए, मेरे मौला ने 2-2 रकात करके नमाज शुरू की। आओ भाई, जो पूरी जिंदगी रोने की आरजू रखता है, ये रिवायत दिल में बिठाए, ज़रूर रोना आएगा। हुसैन मौला 2 रकात नमाज के लिए खड़े हुए। ये 4 साल की बच्ची बाबा के साथ नमाज पढ़ी। दूसरी 2 रकात में हुसैन ने क़याम किया, सामने खड़े होकर बाबा का चेहरा देखती रही। अल्लाह करे मैं रिवायत आप तक सही पहुंचा सकूं। हुसैन मौला क़याम के बाद रुकू में आए, बच्ची झुककर बाबा का चेहरा देखती रह गई। ओ मैं मर जाऊं। हुसैन ने सर सजदे में रखा, बच्ची ने रुख सारा मट्टी पे रखा। अब बाबा का चेहरा सजदे में भी देखती रही और रोकर कहती है, ऐसे नमाजें पढ़ता रह जा ओ मेरा प्यासा बाबा, ऐसे नमाजें कायम रहे ओ मेरा नमाजी बाबा, ओ मैं तुझे देखती रह जाऊं ओ मेरा इमाम बाबा। हुसैन ने नमाज खत्म की, बेटी को उठाकर गले से लगाया और रोकर कहा, सकीना आज की रात जो मांगेगी दूंगा, जो मांगेगी दूंगा। मुझसे पूछो बच्ची ने क्या मांगा? जन्नत मांगी, मदीना मांगा। गले से लिपट कर कहती है, कुछ नहीं मांगती, तू सो जा मैं तेरे सीने पे सो जाऊं, तू सो जा मैं तेरे सीने पे सो जाऊं। यही मांगना था। हुसैन ने बिस्तर के इंतजार नहीं की, मातम करो, हुसैन ने बिस्तर के इंतजार नहीं की, करबला की रेत पर हुसैन सो गए। बच्ची को उठाकर सीने पे सुलाया, मौला ने एक मरसिया पढ़ा, रोकर कहती है, या सकीना तो फहलमी मिनकिल बुकाए दहानी, और रोकर कहते हैं, सकीना आज सो जा कल तमाचे लगेंगे, सकीना आज सो जा कल दुरूद रहेंगे, सकीना आज सो जा कल तू बुलाएगी कोई आवाज नहीं देगा, कहो या हुसैन, बुलंद आवाज से या हुसैन। हाथ बुलंद हो, हाथ बुलंद हो आज की रात, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ बुलंद रहे, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं, मौला हम सबको हुर बना दे। मौला मजलूम के मुंतकम वारिस को पुकारो, कहो या साहिब ज़बान, या साहिब ज़बान, या साहिब ज़बान, मातम हुसैन।